नमस्ते, अ वॉर्म वेलकम ऑल ऑफ यू। आज के सत्र की शुरुआत करते हैं। हम आयुष मंत्रालय की तरफ से जो योगा प्रोटोकॉल उन्होंने निर्धारित किया है उसी को फॉलो करेंगे। ओके, तो हाथों को नमस्कार मुद्रा में रखें। आप वज्रासन में बैठे या सुखासन में बैठ जाएं। धीरे से आंखों को बंद कर दीजिए। श्वास प्रश्वास की गति को जानें। धीरे धीरे सांसें आपकी सहज हो रही है। मन को शांत करने के लिए शरीर को स्थिर रखें। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी है। हल्के से आंखें बंद है और अपने साथ शुरुआत हम प्रार्थना से करेंगे। संघ की प्रार्थना। संघ संवदध्वं संभो मनासि जानतां देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते संजानाना उपासते संजानाना उपासते। आंखों को बंद ही रहने दीजिए। धीरे से हाथों को ध्यान मुद्रा में रखें। एंजॉय द प्रेयर, द वाइब्रेशंस। We work together, we think together, we speak together, and let the divinity manifest in ourselves. That is the meaning of the prayer. धीरे से आंखों को खोलें। शुरुआत हम बेसिक सिंपल संधि चालन क्रियाओं से करेंगे। Let us do simple loosening practices. Okay. Today we will do in sitting. हमने खड़े होके भी करना है, इसी प्रकार बैठ के भी कर सकते हैं। तो आप बैठ के करेंगे सिंपल नेक मूवमेंट्स। इस तरह से सुखासन में बैठे हो, हाथों को आप ध्यान मुद्रा में या द्रोण मुद्रा में रख सकते हैं। सबसे पहले नेक मूवमेंट्स। ओके, सो अप एंड डाउन मूवमेंट्स ऑफ द नेक, बैकवर्ड, slowly gently forward, touch the chin to the collarbone. Again, breathe in back, breathe out forward. Last round, breathe in back and breathe out a nice forward bend. Now let us do the sideward bending. आपके कान को आप कंधे की तरफ ले जाएंगे। Slowly bend down the neck. Do not lift your shoulder blade. Again, center and bend the neck to the left side. Feel the nice stretch and center. Continue it 2 more times. See that the breathing is very normal. धीरे धीरे करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। Slow movements are more essential in yoga practices. Don't be in a hurry. And left side. Very good. Now let us do neck twisting. Turn the head completely to the right side, your chin becoming parallel to the right shoulder. Look behind the right shoulder. Center. Move your eyeballs also along with it. Left side, look behind the left shoulder. गर्दन की मूवमेंट धीमी करें और हर एक स्नायु के अंदर होने वाले चेंज हो जाना है। सेकेंड राउंड, ब्रीद इन, गो बैक, tilt the head nicely towards the back side, center, breathe out. Again, left side, धीरे धीरे गर्दन को घुमाइए और फिर धीरे से सेंटर। One more round. Move the neck very slowly and gently and move your eyeballs. Try to feel the changes within you. The neck becoming more and more flexible. Center. अब हम करेंगे रोटेशन। तो गर्दन को नीचे झुकाइए, नेक रोटेशन करनी है। इस तरह से एक बार क्लॉकवाइज किया और फिर सेंटर में आके वहीं से रिवर्स करें। दैट्स 1। यहाँ पे ध्यान दें कि जिनको भी वर्टिगो है
जिनको भी स्पॉन्डिलोसिस की प्रॉब्लम है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, प्लीज आपने ये प्रैक्टिस नहीं करनी है. इट विल एग्रवेट, so don't do it. Those with normal health will please do it. Last round and reverse. Gently. So clockwise and anti-clockwise, that was one round. Okay. Now let us do for the shoulders. So raise your hands up and take it up more. Now place the hands on your shoulder blades, the fingers, and start the rotation. Touch the elbows in the front, take the hands up, take the hands behind. Nicely move in a rotation. 1, सांसों को सहज लेते रहे. 2, सांस ले, हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे. 3, one more time. 4, वेरी गुड. अब उसे रिवर्स भी करेंगे, पीछे से आगे की ओर ले जाइए. यहाँ पे भी आपको जल्दी जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है. Do it and feel the nice 360 degree movement of your shoulder. The shoulder joint moves in all the directions. तीसरी बार हो चुका है और एक बार लास्ट. Breathe in, breathe out, you go down and relax, stretch. Very good. We can do one more practice. Raise your hands from the sides up, palms up, and join the hands up. Do not join, just keep the hands parallel. Again, down, palms down and down. One more time, so as to increase the flexibility of your shoulder joint. Yes. One more time. Good. Up and slowly palms down, back. That was a nice practice for your shoulder joint. अब धीरे से खड़े हो जाएंगे. हम खड़े होने वाली प्रैक्टिस करते हैं. ट्रंक के लिए, मिडिल बॉडी के लिए we will do twisting. Okay? ट्विस्टिंग के लिए थोड़ा पैरों में अंदर रखेंगे इस तरह से. कमर के बराबर का डिस्टेंस, हाथ दोनों कंधों के बराबर सामने. अब आपको पीछे की ओर मुड़ना है इस तरह से. पीछे मुड़ेंगे, आपका बायां हाथ दाहिने कंधे के पास और आप पीछे देख रहे हो. दाहिना हाथ पूरा पीछे है, सेंटर. अब आपका दाहिना हाथ बाएं कंधे की ओर और बायां हाथ पूरा पीछे. सो फील द नाइस ट्विस्ट. ओके, कंप्लीट. अगेन ट्विस्ट राइट, ट्विस्ट लेफ्ट. I can show you from this side. Twist right, twist left. This way. Again, twist right, twist left, twist right. सांसें सहज. Twist left and center. Bring the hands down gently. Friends, now we go for the knee, so that we have finished the upper body movement loosening. Let us go for the knee movement. पैरों में अंतर है. ओके, हाथों को सामने ले. नाउ सिट डाउन एंड कम अप. ओके, तो चेयर पोज जैसे हाथों को आगे लेंगे, टेकिंग द हिप्स बिहाइंड. सिट डाउन, सी द knees and the toes are in one line. Again up. 1. So breathe out, you go down and breathe in up. ओके, साइड से देखेंगे. तीसरी बार slowly down, up and one more down. Push your hips out and bend down. 2. Okay, relax. So friends, we are done with the basic loosening practices which are necessary for going into the asanas. देखो, आपने loosening किया पर आपकी सांसें कहीं पे तेज नहीं हुई है. Yoga practices which are the traditional ones, loosening practices also do not accelerate your breathing. Your breathing is very very normal even in the loosening practices. Okay, आसनों में तो आपको बिल्कुल सांसें सहज ही रखनी है. तो अब हम खड़े होने वाले आसन को करेंगे. तो पहला आसन जो है हम करने जा रहे हैं ताड़ासन. ताड़ासन इज द पाम ट्री पोज. इसके लिए आप इस तरह से खड़े हैं. अब थोड़ा सा पैर में अंदर रखेंगे. फर्स्ट राउंड में हाथों को आप इस तरह से सामने नीचे इंटरलॉक करें फिंगर्स को. देन पुश द पाम्स आउट एंड द एल्बोज आर स्ट्रेट. रेज योर हैंड्स अप कंप्लीटली. इस तरह से आप देखो, कानों को आपने भुजाओं को टच किया है. अब एड़ियों को उठाएं और किसी एक पॉइंट को सामने देखें. रेज योर हील्स अप. यस, मेंटेन. 1, 2, 3, 4, 5. एड़ियों को नीचे रखिए और हाथों को साइड से नीचे ले आना. So that was the first round. Now, those who have vertigo problem, those who have high BP problem या कुछ नर्वस इश्यूज है या बैलेंसिंग की प्रॉब्लम है, तो आप दीवार से चिपक जाइए और फिर इस प्रैक्टिस को करें. So you can stick to the wall and do the practice because you will need to balance yourself.
और एक तरीका है जो एडवांस्ड है, जिनको अच्छी तरह से आता है बैलेंस, बहुत रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो पैरों को जोड़ के करेंगे. सो लेट अस डू विद द लेग्स टुगेदर. वी कैन जॉइन द लेग्स टुगेदर. सेम हैंड्स अप, interlock the fingers, hands stretched out, raise your hands up, and now fixing your gaze, raise your heels up. किसी एक पॉइंट को सामने देखिए, हाथों को और ऊपर की ओर ताने और देखो आपके अपर आर्म्स कानों को टच है. सांसें सहज. 1 2 3 4 5. Slowly hands down, sorry, heels down, and then your hands down. That was the very first pose we did. That was the palm tree pose, ताड़ासन. Okay, ताड़ के पेड़ के जैसे हमें अपने आप को स्ट्रेच करना है. It elongates your spine, it elongates your leg muscles, very helpful for height gain in children, and it stretches all the muscles, tones up the muscles of the body. It helps to do away with lethargy also. A very nice practice, so it should be done in the mornings. अब next practice करते हैं balancing आसन, और balancing आसन है वृक्षासन. वृक्षासन is the tree pose. You are going to stand on one leg. So again, जिनको भी vertigo issues है, जिनको तनाव है, कार्डियक प्रॉब्लम है, हार्ट की इश्यूज है या बीपी है, शायद से वो बैलेंस नहीं कर पाएंगे, तो वॉल सपोर्ट लेके, दीवार का सपोर्ट लेके, पीठ को आप दीवार से चिपका के फिर आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं. ओके, सो फिक्स योर गेज. वृक्षासन में एक पैर पे बैलेंस करना. फिक्स योर गेज एट अ पॉइंट. यस, राइट लेग फोल्ड एंड टेक इट हायर. लेट द सोल टच द इनर लेफ्ट थाई. यहाँ पे मेंटेन करने के बाद ही आप दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में ऊपर उठाएंगे. सांसों को लेते रहिए. 1, फिक्स योर गेज. 2 3 4 5. वेरी गुड. एंड जेंटली डाउन. ओके, अब धीरे से इस पैर को नीचे लीजिए. नाउ रिलैक्स, डोंट बी इन अ हरी, एंड इट इज अ सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री प्रैक्टिस. लेट अस डू इट द अदर साइड. सो अब लेफ्ट लेग को फोल्ड किया इस तरह से. स्लोली टच द इनर थाई. अगर यहाँ पे नहीं रख सकते तो पैर को और नीचे भी रख सकते हैं, और नीचे भी रख सकते हैं. ओके, but you are learning to stand on one leg. Fix your gaze and gently raise both the hands up. Maintain. 1 2 3 4 5. Very good. And gently hands down. Relax. So if your thoughts are there, multiple thoughts in the mind, what will happen? Like now, I was not able to balance. So thought processes को single line या चैनलाइज करने के लिए किसी एक पॉइंट को देखना है, मन के विचारों को रोकना है, सांसों को देखना है. अगर मन के विचार स्थिर है तो सांसें भी स्थिर रहेगी, तो आपका पोस्चर भी स्थिर हो जाएगा. सो दिस इज अ वेरी नाइस बैलेंसिंग आसन. सो ये बैलेंसिंग के साथ आपका कोऑर्डिनेशन भी इंप्रूव करता है और मेमोरी को स्ट्रॉन्ग करता है. सो कॉन्सेंट्रेशन, मेमोरी को बढ़ाना और अपने न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन को संतुलित रखने के लिए वृक्षासन इज अ वेरी इफेक्टिव प्रैक्टिस. After Vrikshasana, let us go for a nice forward bending practice. The forward bending practice is Pada Hastasana. Pada, legs, Hasta, hands. So you are taking your hands towards your legs. That's why it is called as Pada Hastasana. अब यहाँ पे आप दोनों पैरों में जरा अंदर रखें. किसी को वर्टिगो है, किसी को हाई बीपी है, थोड़ा ध्यान से करें, ज्यादा झुकना नहीं. करना है इस अभ्यास को, पर आप अपने क्षमता के अनुसार करें. डोंट अननेसेसरी ओवर स्ट्रेन योरसेल्फ. सम पीपल हैव लिटिल बिट ऑफ प्रॉब्लम व्हेन यू लीन फॉरवर्ड, सो यू कैन डू लेसर बेंडिंग डाउन. ओके, एंड डोंट मेंटेन लॉन्ग. सो यहाँ पे हमने कमर के बराबर डिस्टेंस रखा है. पैरों में डिस्टेंस रखेंगे. हाथ शोल्डर लेवल पे पहले लीजिए, फिर हाथों को ऊपर और पीछे की ओर मुड़े. धीरे धीरे अच्छी तरह से एक बार फॉरवर्ड बेंडिंग कीजिए और जहां तक हाथ जाते हैं ढीला छोड़ दीजिए. Release your hands down, relax them, do not keep them tight. Just relax the hands, the knees are straight and maintain. 1 2 3 4 5. धीरे धीरे स्पीड से सीधे हो जाइए. अब हाथों को ऊपर लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कमर से सीधे हो जाइए. So that was a practice where you are keeping distance between the legs and going down. You could feel the nice compression on the abdomen. A very nice forward bending of the spine was happening. Compression on the abdomen, so it helps to give a nice massage to the abdominal organs, improves your digestion, helps to eliminate constipation problem. The most important benefit is on your hamstring muscles. You could feel the nice pulling on the hamstring muscles, so your calf muscles are becoming more and more strong. अब जो रेगुलर प्रैक्टिशनर्स हैं,
पैरों को जोड़ के फॉरवर्ड बेंडिंग करेंगे। जिनको बहुत सालों का अभ्यास है वो पैरों को जोड़ के करें, और जो नई पहली बार कर रहे हैं या बिगिनर्स है, आप पैरों में अंतर रख के ही फॉरवर्ड बेंड करेंगे सेकेंड राउंड में। ओके, सो अगेन पैरों में अंतर रखिए आपके कंडीशन के अनुसार, या पैरों को जोड़ के हाथों को सामने लीजिए, ऊपर उठाए, पीछे की ओर मुड़े, और slowly see you're pushing your hips back and then you go down and maintain there. घुटने सीधे मेंटेन करें, सांसें सहज, 1 2 3 4 5 and gently come up, relax. Got it? So that was a very nice practice of Pada Hastasana. Some call it as Hasta Padasana also. That is your hands to the toes posture. So that was a very effective practice, friends. We learned it was a complete forward bend to the spine. So let us do a complementary practice for this, and that is a backward arching to the spine. And backward arching में हम करेंगे अर्ध चक्रासन। बहुत ही सिंपल है, सभी कर सकते हैं इसमें। तो इसको क्या करना है, आपको दोनों पैरों में इस तरह से डिस्टेंस रखना है, थोड़ा सा हिप के बराबर, और दोनों हाथों को कमर पे रखना है, एंड देन यू मूव बैकवर्ड्स। तो पैरों में डिस्टेंस रखा, हाथों को कमर पे रखेंगे इस तरह से। आप ऐसे भी कमर को पकड़ सकते हैं, और दिस वे। आइडियली आई विल से जॉइन द स्मॉल फिंगर्स टुगेदर and place them on your spine, back, lower back, and now give a backward arching to the spine. Again, those who feel they are losing the balance, आप कम पीछे की ओर झुके। जिनको नेक पेन है ध्यान से करें, सांसों को सहज लेते रहिए, 1 2 3 4 5 and gently come up, relax. So friends, you must have seen standing आसन में हम आंखों को खुला ही रखते हैं, क्योंकि शायद से हमारा बैलेंस चला जाएगा। इसीलिए इफ यू आर अ वेरी रेगुलर प्रैक्टिशनर देन यू कैन कीप योर आईज क्लोज इन द फाइनल स्टेप। अदरवाइज सेफ इज टू कीप द आईज ओपन। ओके, सो हमने क्या किया, इसमें बैकवर्ड आर्चिंग किया, तो ऑफ कोर्स आपका स्पाइन लचीला बन रहा है, आपके चेस्ट मसल्स एक्सपैंड हो रहे हैं, सो आपकी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है। आज के दौर में हमें अपने इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना है, ब्रीदिंग कैपेसिटी को स्ट्रॉन्ग करना है, लंग्स को अच्छी तरह से मेंटेन रखना है। सो दिस इज अ वेरी नाइस प्रैक्टिस टू एक्सपैंड द लंग वॉल्यूम। ऑल्सो यू फील सम स्ट्रेचिंग ऑन योर एब्डोमेन मसल्स। सो अर्ध चक्रासन का सेकेंड राउंड करेंगे, पैरों में अंतर रखें और हाथों को कमर पे रखेंगे। स्लोली गिव अ नाइस बैकवर्ड आर्च एंड मेंटेन 1 2 3 4 5. Gently straighten up and relax. Okay, so you could feel the nice effects on your spine, on your cervical region. It helps to tone up the entire back. हंचबैक की शिकायत है, हम लोग आजकल बहुत ज़्यादा समय स्क्रीन टाइम पे रहते हैं, तो यू हैव दिस स्लाउचिंग इफेक्ट और यू लीन फॉरवर्ड एंड डू द वर्क, सो ये बैक को प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। सो दिस आसन इज हेल्पिंग टू स्ट्रेंथन योर एंड रीइंफोर्स योर अपर स्पाइन। So that was a very nice practice, friends, and let us move on for one other practice. और पैरों में अंतर रखेंगे इस तरह से। We are going for त्रिकोणासन। ओके, त्रिकोणासन के लिए लगभग 3 से 4 फुट की दूरी है दोनों पैरों में। हाथों को कंधों के बराबर लीजिए। Now point your right foot out इस तरह से, and now slowly bend to the right side. इस तरह से बेंड करें। आपका राइट फुट की तरफ आपका राइट पाम है, दोनों घुटने सीधे हैं। ऊपर वाले हाथ को देखिए, सांसों को मेंटेन करें। 1, you can place your palm resting on the foot. 2 3 4 5. Gently come up. Right foot in, left foot point out, and slowly start bending to the left side. And look at your upper hand. One knees are straight. 2 3 4 5. And gently come up. Very good. Relax the hands. Bring the leg closer. आंखों को बंद करें, विश्राम करें। फ्रेंड्स, त्रिकोणासन हमने किया ट्रायंगल पोज। इसमें हमने शरीर को एक साइड झुकाया, फिर दूसरे साइड झुकाया, ताकि हमारा शरीर का जो कोण है वो ट्रायंगल पोजीशन में आ जाए। अ वेरी इफेक्टिव प्रैक्टिस फॉर योर साइड मसल्स व्हिच वी कॉल एज द ऑब्लिक मसल्स। सो ऑब्लिक मसल्स पर इसका अच्छा सा बेनिफिट होता है। इट हेल्प्स टू फंक्शन वर्क, इम्प्रूव द फंक्शनिंग ऑफ योर किडनीज, improve the functioning of the sluggish liver also. It tones up your entire side muscles. Important is your sideward movement of the spine is happening. Okay? Generally हम आगे या पीछे की ओर झुकते हैं, हमारी रीढ़ की हड्डी को आगे झुकाते हैं या पीछे की ओर। साइडवर्ड मूवमेंट हम कभी स्पाइन का नहीं करते हैं। So what is happening in this? You are doing the lateral movement of the spine, which is really very effective practice. So this is a really effective practice
not only tones the upper body, it also tones the thighs and the hips and the calf muscles. So it's an entire practice for the entire body. That was the त्रिकोणासन we did. Okay, त्रिकोणासन के बाद अभी आप बैठ जाइए अपनी जगह पर और शिथिल दंडासन में बैठे. Sit in शिथिल दंडासन, relax. And now we are going for the sitting asanas. Sitting asanas में हम पहला करेंगे भद्रासन. Bhadra is the firmness which brings in the body. It is also called as तितली आसन. तितली क्रिया हम वार्मिंग अप में करते हैं, बट ये है भद्रासन जिसमें हम तितली आसन जाके स्थिर रहेंगे. We are not going to flap the moves. So it brings a firmness and steadiness in the body. हमारे मूलाधार चक्र को हम यहाँ पे एक्टिवेट करते हैं. We are working on the pelvic region. So यहाँ पे पैरों को इस तरह से मोड़ेंगे, ऐसे बैठे. Okay. Bring the legs as close and push your knees down. तो हाथों को इंटरलॉक करके अपने टोज को पकड़ लीजिए. Bring the legs closer. If you have knee pain या नी की ऑपरेशन हो चुकी है, कुछ प्रॉब्लम है तो दूर रखो या तो मत करो. Bring the legs closer. Interlock the fingers. Back straight. Pushing the knees down and head up. Or you can keep the head still. आंखों को यहाँ पे बंद कर दीजिए. Enjoy the nice pelvic stretch happening in the inner thighs. Maintain 1, 2, 3, 4, 5. Very good. Open your eyes and now slowly release the hands. Slowly relax the legs. That's a very effective practice. वज्रासन, वज्रासन के जैसे भद्रासन. So भद्रासन हमने किया है. आंखों को बंद करें विश्राम स्थिति में. So you have to be very very steady and feel the firmness in the body. तो इससे आपकी अगर फिजियोलॉजिकल लेवल पे देखें तो आपका पेल्विक रीजन स्ट्रांग होता है, आपके लोअर बॉडी ऑर्गन स्ट्रांग होते हैं, एंड साइकोलॉजिकल लेवल पे देखें तो आपके अंदर दृढ़ता आती है. यू बिकम फर्म एंड योर डिसीजन मेकिंग पावर बिकम्स मोर एंड मोर स्ट्रॉन्गर. सो लेट्स डू द सेकंड राउंड ऑफ भद्रासन. फिर से पैरों को इस तरह से मोड़ा है. ब्रिंग द लेग्स क्लोजर, पुश द नीज डाउन, कीप द स्पाइन टॉल एंड मेंटेन. 1, 2, 3, 4, 5. Open your eyes and gently release your hands. Relax your legs. Very good practice. That was Bhadrasan. अब भद्रासन के बाद हम बैठेंगे वज्रासन में. पर जिनको भी नी की कोई शिकायत है, डॉक्टर ने नीचे बैठने के लिए मना किया है या उन्होंने पैरों को मोड़ डाली है. इफ यू फोल्ड द लेग्स इन वज्रासन यू आर गोइंग टू हार्म योरसेल्फ. सो जिनको थोड़ी भी नी की प्रॉब्लम है, घुटने की प्रॉब्लम है, आप प्लीज इस आसन को नहीं करेंगे. ओके. सो वज्रासन के लिए देखो इस तरह से आपने एक पैर को पीछे लेके एक एड़ी पर बैठे, फिर दूसरे पैर. तो आपके दोनों एरिया बाहर की ओर है और पैरों के अंगूठों को जोड़ दिया है. ओके. सो यू आर इन वज्रासन. क्लोज योर आइज. मेंटेन वज्रासन. सांसों को सहज लेते रहे. हाथों को इस तरह से रखें. ब्रीदिंग इज वेरी नॉर्मल. एंड नाउ वी गो फॉर द नेक्स्ट आसन. वज्रासन में बैठ के अब अभी घुटनों पर खड़े हो जाएंगे. सो आई विल शो यू फ्रॉम द साइड. इस तरह से आप हो. अब आप जो वज्रासन में नहीं बैठे हैं वो भी इस तरह से नी पोजीशन पे आ सकते हैं. यू कैन सिट ऑन द स्टैंड ऑन द नीज. ओके. ऐसे. तो यहाँ पे थोड़ा घुटनों में अंदर रखेंगे. यू कैन कीप डिस्टेंस, लाइक कीप डिस्टेंस बिटवीन योर नीज एंड योर फीट ऑल्सो. And let us go for अर्ध उष्ट्रासन. उष्ट्र यानी कैमल. So we are going for अर्ध उष्ट्रासन. हाथों को ऐसे रखो या हाथों को कमर को ऐसे पकड़े, जिस तरह से आपको कंफर्टेबल लगे. आपको टोज इनवर्ट्स करने हैं तो टोज इनवर्ट्स करें या टोज को रिलैक्स आउट. Palms on the back and give a backward arch to the spine and maintain. 1, 2, 3, 4, 5. Slowly straighten up and relax in Vajrasan. So उष्ट्रासन हमने किया. बैकवर्ड आर्चिंग, कैमल के ऊंट के पीठ के जैसे हमारी धीरे धीरे आकृति करने वाले हैं. तो अर्ध उष्ट्रासन सभी के लिए है. जिनको थोड़ा थोड़ा बैक पेन भी है उन्होंने इस आसन को आराम से कर सकते हैं. बट दोज हु हैव लिटिल बिट ऑफ एनी इश्यूज ऑफ द बैक, डोंट गो फॉर द एडवांस्ड. ओके. सो एडवांस्ड इज लिटिल बिट डिफिकल्ट. सो प्लीज बी केयरफुल कि आप एडवांस नहीं करेंगे. हम सेकेंड राउंड में एडवांस उष्ट्रासन करने जा रहे हैं. तो जो रेगुलर प्रैक्टिशनर्स है या जिनकी स्पाइन की कोई इश्यू नहीं है उन्होंने ही इस आसन को करना है. अदरवाइज यू डू द फर्स्ट राउंड ऑफ अर्ध उष्ट्रासन. सो उष्ट्रासन के लिए तैयार. घुटनों पर खड़े हैं आप. अब आपको क्या करना है, राइट हैंड को गोल घुमा के इस तरह से आप राइट एड़ी पर रखेंगे. लेफ्ट हैंड को गोल घुमा के लेफ्ट एड़ी पर रखें.
हेड हैंगिंग बैक, पुश योर एब्डोमेन फॉरवर्ड, आंखों को बंद करें या खुला, 1 2, सांसें सहज, 3 4 5, एक एक हाथ को वैसे ही छोड़े, डोंट ब्रिंग द हैंड फॉरवर्ड, सिट इन वज्रासन। ओके, सो दैट वाज अ नाइस प्रैक्टिस। वज्रासन में बैठ के रिलैक्स कीजिए। तो हमने यहाँ पे क्या किया, स्पाइन का बहुत ही ज्यादा बैकवर्ड बेंडिंग किया है इन कंप्लीट उष्ट्रासन। सो इट हेल्प्स टू improve the strength of your spine, making it more and more flexible, expands your chest, so naturally your breathing capacity is improving, your muscles of the chest are toned up, abdomen muscles also getting toned up, और आप घुटनों पर खड़े हैं तो घुटने के स्नायु भी अच्छी तरह से स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। तो दैट वाज अ नाइस प्रैक्टिस ऑफ उष्ट्रासन। मूविंग ऑन फॉर द नेक्स्ट प्रैक्टिस इन सिटिंग। इन वज्रासन में आप बैठे हो, हम करेंगे द नेक्स्ट प्रैक्टिस दैट इज शशांक आसन। इसमें आप देखो घुटनों में इस तरह से डिस्टेंस रखें, स्प्रेड द फीट अपार्ट, ऐसे बैठे हैं। अब पाम्स को ऐसे रखो एंड स्लाइड करते हुए आगे जाए, स्लोली प्रेस द हेड डाउन, सांसों को लेते रहे, 1 2 3 4 5, raise your head up and slide your hands back. Okay, so that was a nice practice and join the knees together. So ये शशांक आसन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द रैबिट पोज। रैबिट से इस तरह से बैठते हैं इसीलिए। सो यहाँ पे आपकी ब्रीदिंग कैपेसिटी बढ़ती है, बैक मसल्स को अच्छा सा रिलैक्सेशन मिलता है एंड द फ्रंट मसल्स आर गेटिंग अ नाइस टोन अप। ओके, सो इट इज एक्चुअली हेल्पफुल फॉर इम्प्रूविंग द स्ट्रेंथ ऑफ योर पेल्विक रीजन एंड द एब्डोमेन रीजन। तो हम साइड से देखते हुए करेंगे। अब पैरों में डिस्टेंस बढ़ाएं, वज्रासन में ही बैठे रहे और घुटनों में डिस्टेंस को बढ़ाएं। स्लोली गो फॉर द सेकेंड राउंड ऑफ शशांक आसन। ओके, हाथों को ऐसे रखा है, स्लोली स्लाइड, यू आर नॉट राउंडिंग अप द बैक। तो आप ऐसे बैठे हो, इसी तरह से स्लाइड करते हुए आगे जाएंगे एंड टच योर चेस्ट टू द मैट, चिन ऑन द फ्लोर और फोरहेड ऑन द फ्लोर। मेंटेन 1 2 3 4 5, chin up and slide your hands back. Relax in Vajrasan. Okay, so that was a nice practice we did. Maintain Vajrasan. Those who cannot maintain Vajrasan, release right. So हमने किया elongating and lengthening the spine in शशांक आसन। अब हम दूसरा आसन करते हैं सिटिंग में ही, मंडूक आसन। तो ये मंडूक आसन है, उत्तान मंडूक आसन, एज इफ द फ्रॉग इज जंपिंग। तो वो के लिए पैरों को डिस्टेंस बढ़ाए, इस तरह से पैरों में जितना डिस्टेंस बढ़ा सकते हैं बढ़ाए। राइट हैंड ऊपर उठा के आपको राइट पाम को लेफ्ट शोल्डर ब्लेड के पीछे रखना है, लेफ्ट साइड ऑफ द अपर बैक, एंड लेफ्ट हैंड उठा के फोल्ड करके राइट अपर बैक के पीछे रखना है। ओके, एंड नाउ लुक अप। सो दिस इज द फाइनल पोजीशन। सांसों को सहज लेते रहिए, 1 2 3 4 5, release your hands in the reverse order and join your legs and sit in Vajrasan. So that was a very effective practice for strengthening and improving the strength of your shoulder joint also. ये पूरे spine को खिंचाव देता है। Very nice practice even for persons with hernia. If you have that problem also, it helps to clear out. Okay, so it gives a stretch and tone to the entire front and the back muscles. सेकेंड राउंड में हम आपको पीछे से बताएंगे ताकि आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से आपको बैक पे रखना है। सो नाउ यू आर इन वज्रासन। आप वज्रासन में बैठे हुए हो इस तरह से, यू आर इन वज्रासन नाइसली। नाउ रेज योर राइट हैंड अप, प्लेस इट ऑन द लेफ्ट बैक एंड लेफ्ट हैंड अप, प्लेस इट ऑन द राइट बैक। इस तरह से अपने हाथों को रखा, गर्दन को सीधी रखें, आंखों को बंद करें, मेंटेन 1 2 3 4 5, release your hands one by one and relax. Okay, so अभी आप वज्रासन को भी रिलीज कर दीजिए। सिट रिलैक्स्ड, रिलैक्स फॉर अ while, feel the nice effects of उत्तान मंडूकासन। अब हम करेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिस वक्रासन। ओके, बैठने के हम वक्रासन करेंगे इस तरह से, पहले पीठ से सीधे हो जाएंगे। फॉलो मी, राइट लेग को फोल्ड किया, राइट फुट बाय द साइड ऑफ द लेफ्ट नी, प्लेसिंग द राइट हैंड बिलो द राइट नी, स्ट्रेटन द स्पाइन, लेफ्ट हैंड अप एंड एनसर्कल ऑन द आउटर साइड एंड होल्ड द एंकल जॉइंट, इस तरह से। और अब राइट हैंड को छोड़ के
पीठ के पास रखें और गर्दन को राइट साइड घुमा दीजिए। क्लोज योर आइज, ब्रीदिंग इज नॉर्मल, मेंटेन 1 2 3 4 5। गर्दन को सीधी करें, पीछे वाले हाथ को रिलीज करके घुटने को पकड़े नीचे से, फिर लेफ्ट हैंड को रिलीज करना और राइट लेग को रिलैक्स कीजिए। रिलैक्स, डोंट गेट कंफ्यूज, इट इज अ वेरी सिंपल प्रैक्टिस। इट इज डन बाय वन साइड, इट इज सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री, विल डू इट द अदर साइड। तो फिर से अभी हम इस तरह से बैठ के बताएंगे। ऐसे बैठे, हाँ, पीठ से सीधे हो जाइए एंड सी दैट यू आर नॉट लीनिंग बैक, यू आर कीपिंग द स्पाइन स्ट्रेट। लेफ्ट लेग फोल्ड किया, लेफ्ट फुट राइट नी के बगल में रखें, लेफ्ट हैंड से लेफ्ट नी को नीचे से पकड़ लिया, ऑपोजिट हैंड, द राइट हैंड स्ट्रेच इट अप एंड पुश इट ऑन द आउटर साइड ऑफ द नी एंड होल्ड। अगर होल्ड नहीं होता है तो ऐसे करो, ये भी नहीं होता है तो ऐसे करो, ओके। होल्ड द एंकल, लेफ्ट हैंड को पीछे स्पाइन के पास रखना है और देखो स्पाइन को सीधा रखते हुए पीछे गर्दन को घुमा दें। सांसों को लेते रहे, 1, दूसरा पैर जमीन पर सीधा रखें, 2 3 4 5। गर्दन सीधी, रिलीज योर बैक हैंड, होल्ड द नी, रिलीज द फ्रंट हैंड, रिलैक्स। क्लोज योर आइज एंड रिलैक्स। सांसों को रोकना नहीं है। हमेशा कुछ डिफिकल्ट आसन होते हैं तो हम भूल जाते हैं सांसों को लेना। सो सी दैट योर ब्रीदिंग इज वेरी वेरी नॉर्मल, ओके। तो दैट वाज वक्रासन वी डिड फ्रेंड्स, अ वेरी नाइस ट्विस्टिंग प्रैक्टिस। डायबिटीज जिनको है उनके लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल प्रैक्टिस है। इट इज वेरी वेरी इफेक्टिव प्रैक्टिस फॉर पर्सन्स विद डायबिटीज एंड दोज हु हैव एनी प्रॉब्लम विच इज रिलेटेड टू द डाइजेस्टिव सिस्टम। आपकी स्पाइन का ट्विस्टिंग हो रहा है तो स्पाइन और भी लचीला बनता है। सो इट हेल्प्स टू गिव अ नाइस रोटेशन और ट्विस्ट टू द स्पाइन। सो लेट अस डू वन मोर राउंड, बैक स्ट्रेट, सी फ्रॉम द फ्रंट, राइट लेग इज फोल्डेड, राइट नी के नीचे से पकड़ लिया, लेफ्ट हैंड को ऊपर उठा के इस तरह से बाहर रखते हुए लेफ्ट एंकल को पकड़ेंगे, राइट हैंड पीछे और गर्दन को राइट साइड पीछे घुमा दीजिए। सांसों को लेते रहे, 1 2 3 4 5। गर्दन सीधी, पीछे वाले हाथ को रिलीज करके राइट नी को पकड़े, फिर लेफ्ट हैंड रिलीज एंड नाउ रिवर्स अदर साइड। लेफ्ट लेग फोल्ड, लेफ्ट नी के बगल में आपने लेफ्ट टो को रखा है, राइट हैंड इज स्ट्रेच नाउ एंड आउटर साइड होल्ड द नी, होल्ड द एंकल एंड टेक द लेफ्ट हैंड बैक, टर्न कंप्लीटली टू द लेफ्ट साइड बैक। ब्रीदिंग इज नॉर्मल, 1 2 3 4 5। गर्दन को सीधी करें, पीछे से हाथ को रिलीज करके घुटने को पकड़े और आगे वाले हाथ को रिलीज करके रिलैक्स करना। क्लोज योर आईज एंड रिलैक्स फॉर अ व्हाइल। ऑल द सिटिंग आसनास वी हैव डन। और अब पेट के बल लेट जाइए। वी विल गो फॉर द प्रोन पोजीशन आसन। पेट के बल लेटेंगे सुलभ मकर आसन में, इस तरह से लेट जाइए, एक करवट पे आके पेट के बल लेटेंगे। इस तरह से हथेली को रखना है, एक हथेली पे, माथा दोनों हथेलियों पे, और पैरों को ऐसे फैला देना है। योर टोज आर पॉइंटिंग आउट एंड योर हील्स आर इनवर्ड। वी आर गोइंग फॉर भुजंगासन। द फर्स्ट इज सुलभ भुजंगासन, ऑल्सो कॉल्ड एज सरल भुजंगासन। तो जिनको भी नेक पेन, बैक पेन है, वो लोग इस प्रैक्टिस को कर सकते हैं। पैरों को जोड़ी, कमर से निचला हिस्सा बिल्कुल ढीला है और दोनों हाथों को ऐसे मैट पे रखिए, माथा मैट पे, तो आपके फोर आर्म्स मैट पे है। धीरे से आप सिर को उठाएं, हाथों को आगे स्लाइड करके उठे। आपका सीना, आपका चेस्ट जमीन से ऊपर है एंड यू सी हाउ द फोर आर्म्स आर ऑन द मैट। गर्दन को ऊपर घुमा दें, सांसों को ले, 1 2 3 4 5। Slowly bring the head down, relax. Do not forget to breathe. Breathing has to be normal. Relax. In the second round, we are doing the advanced, the ideal Bhujangasana. पर जिनको भी नेक पेन, बैक पेन है, उन्होंने पहला वाला राउंड ही करना है, सेकेंड राउंड नहीं करना है। जो हमने बताया वही राउंड को रिपीट करना है। Those who do not have back pain can do the advanced Bhujangasana. पैरों को जोड़े, पाम्स को चेस्ट के बाजू में रखेंगे। अभी देखो आपकी कंधे, एल्बोस कैसे हैं, ऊपर उठे हुए हैं, माथा मैट पे है, और धीरे से सिर को उठाए, थोड़ा चेस्ट को उठाए, यहाँ पे इस तरह से ऊपर देखेंगे। सांसों को लेते रहिए, 1 2 3 4
धीरे धीरे नीचे आ जाइए। क्लोज योर आइज, रिलैक्स इन मकरासन। So that was a nice backward arching for the spine. It strengthens your neck muscles, it strengthens your upper back and gives a nice massage to the abdomen organs. तो हमने अपर स्पाइन पे वर्क किया है. लेट अस वर्क ऑन द लोअर स्पाइन. सो जॉइन द लेग्स टुगेदर, चिन ऑन द मैट, हाथों की फिस्ट बना के थाइस के नीचे रखें एंड रेज बोथ द लेग्स अप. दोनों पैरों को ऊपर उठाए. शलभासन, द ग्रास हॉपर पोज. 1 2 3 4 5. जेंटली डाउन. Now those who have difficulty in raising, आपको अगर लो बैक पेन है या बहुत ज़्यादा वेट है तो आप एक एक पैर को उठा सकते हैं. यू कैन जस्ट रेज ओनली वन लेग at a time. Maybe you have some problem, so raise one leg. Otherwise, ideally 2 legs. Relax. So we go for the second round of शलभासन. हाथों की फिस्ट बना के थाइस के नीचे, चिन मैट पे रखें. सिर को उठाना नहीं है, सिर्फ पैरों को उठाए कमर से. And see that you are not raising your head up. Your chin is fixed on the mat. सांसें सहज. 1 2 3 4 5. Gently bring the legs down and relax. आंखों को बंद करते विश्राम स्थिति. Relax. Okay. Now turn on your back. पीठ के बल लेट जाएंगे. सुपाइन पोजीशन में लेटे. रिलैक्स. ओके. ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, डीप एंड लॉन्ग. नाउ वी आर रेडी फॉर द सुपाइन पोजीशन. पीठ के बल लेटने वाले आसनों के लिए हम तैयार हैं. दोनों पैरों को जोड़े. सबसे पहला आसन सेतु बंधासन करेंगे. ब्रिज पोज. हाथों को शरीर के बगल में रखिए. दोनों पैरों को मोड़ दीजिए. एडियो को हो सके उतना नजदीक ले आएंगे. होल्ड योर एंकल जॉइंट्स एंड लिफ्ट अप कंप्लीटली. जितना ऊपर उठ सकते उठे. चिन लॉक इज हैपनिंग. मेंटेन. 1 2 3 4 5. स्लोली कम डाउन एंड जेंटली रिलैक्स योर लेग्स. सेतु बंधासन ब्रिज पोज इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस फॉर एनी टाइप ऑफ बैक पेन. किसी भी प्रकार का पीठ का दर्द है तो आप सेतु बंधासन कर सकते हैं. Very effective practice. Let's do one more round. Again, fold the legs at the knees. Bring the heels closer. You can keep the knees also joined together if you are comfortable. And now slowly raise the middle body up. Maintain करें. सांसों को लेते रहें. 1 2 3 4 5. Slowly come down. Relax. Close your eyes. Vishram Sthiti. Enjoy the effects of Setu Bandhasan. Tones up your abdomen and stretches your spine and calms down your nervous system. Next asan, Pavan Muktasan, which is a very effective practice for releasing all the gases in the abdomen and improves your digestion as well as your excretory system function. So, दोनों पैरों को 60 डिग्री उठा के घुटने से मोड़े. Fold the legs and now interlock the fingers. Press tight. इस तरह से प्रेस किया. अब जिनको भी नेक पेन है वो इसी तरह से रुके और जिनको नेक पेन नहीं है सिर को उठाए. मेंटेन करें. 1 2 3 4 5. Head down. Slowly hands by the side. Straighten the legs to 60 and bring the legs down gently. Close your eyes and relax. So पवन मुक्तासन, पवन को मुक्त करना. पेट में जो भी अतिरिक्त चर्बी गैसेस है उसे निकालता है. ऑफ कोर्स पेट की चर्बी भी इससे कम हो जाती है. आपकी उत्सर्जन संस्था यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम भी अच्छी तरह से वर्क करता है. सो लेट अस डू वन मोर राउंड ऑफ पवन मुक्तासन. रेज द लेग्स टू 60. बेंड एट द नीज. इंटरलॉक द फिंगर्स. प्रेस टाइटली. जिनको नेक पेन है यहीं पे रुके. जिनको नेक पेन नहीं है सिर को उठाए. मेंटेन. 1 2 3 4 5. Head down. Release the hands. Open up the legs and bring the legs down. आराम स्थिति में लेटे रहे. Relax.
एंड नाउ लाई डाउन फॉर शवासन। पैरों में अंतर, हाथ दूर है, आंखों को बंद रखें। लेट अस डू अ क्विक शॉर्ट शवासन। पैरों से लेकर सिर तक अपने पूरे शरीर को मन की आंखों से देखें और सूचनाओं के साथ बने रहें। जिस तरह से मैं गाइड करूं उस तरह से आप अपने ध्यान वहां ले जाना। ध्यान सबसे पहले दोनों पैरों पर ले आए और मन ही मन अपने दाहिने पैर को देखे और अपने बाएं पैर को देखे। दोनों पैरों को आराम स्थिति में रहने दें। मन ही मन पैरों को गाइड करें। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। Feel the lightness in both the legs. हाथों पर ध्यान है, मन ही मन दोनों हाथों को देखें और हाथों को भी आप गाइड करें। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। हाथों की उंगलियों से लेके कंधों तक दोनों हाथ अब हल्के होते जा रहे हैं। ढीलेपन को, आराम को जाने। Now you take your awareness towards your back. Visualize your spine and all the spinal region. Relax your lower back, middle back, upper back. Bring the awareness to the front now. ध्यान शरीर के आगे, पेट पर और सीने पर है। सभी स्नायु ढीले हैं। रिलैक्स योर लोअर एब्डोमेन, मिडिल एब्डोमेन, अपर एब्डोमेन। रिलैक्स योर चेस्ट, रिलैक्स योर नेक। नाउ रिलैक्स योर फेशियल टिश्यूज, फेशियल पार्ट्स एंड रिलैक्स योर हेड। कुछ पलों के लिए अब सांसों पर ध्यान बनाए रखें। आप जान रहे हो सांसें बिल्कुल धीमी और सामान्य गति में चल रही है। मन के अंदर विचार भी नहीं है, मन शांत हो रहा है। एंजॉय दिस फेज ऑफ शवासन, टोटल कंप्लीट रिलैक्सेशन विद अवेयरनेस। अब धीरे धीरे और सजग होके ध्यान पैरों पर ले आना। अपने पैरों के पंजों को जरा जरा हिलाए, हाथों की उंगलियों को हिलाए, सिर को घुमाए राइट एंड लेफ्ट। दोनों पैरों को जोड़े, दोनों हाथों को सिर के ऊपर ले जाना है, पैरों को नीचे तानना है, हाथों को ऊपर खींचना है। आंखों को बंद रखते हुए हाथों को शरीर के बगल में ले आए, पैरों को मोड़े, एक करवट पे आप आ जाइए धीरे से और आंखों को बंद ही रहने दो, अपनी जगह पर बैठ जाए। सिट इन योर प्लेस, कीपिंग योर आईज क्लोज्ड, डू नॉट ओपन योर आईज। रिलैक्स पोजीशन में बैठे रहे। एंड नाउ जेंटली ओपन योर आईज। सो फ्रेंड्स, नाउ वी आर रेडी फॉर द ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस। धीरे से सुखासन में बैठे या चेयर पे भी बैठ सकते हो। अगर आप लोगों को मुश्किल लग रहा है, जिनको आदत नहीं है, आप कुर्सी पे भी बैठ के ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस कर सकते हैं। Back straight and let us go for the very first kriya. Before pranayams we do the kriya. शुद्धि क्रिया है और वो है कपालभाति। तो कपालभाति 30 strokes करेंगे। Chest is fixed. Do not move the chest and the shoulders. Only flapping of the abdomen. Active exhalation, passive inhalation. So inhalation will not be seen, okay, or it is not conscious. Chest fixed है. Let's start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Relax. So easily we can do 30 strokes of Kapalbhati exhalation. See that you are venting out only and you are not inhaling actively. The body will inhale passively. Let us go for the second flapping movements and exhalation. Second round of Kapalbhati start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2,
8, 9, 30। वेरी गुड। आंखों को बंद ही रखें। विश्राम स्थिति में अगर बैठना है पैरों को रिलीज करके तो आप पैरों को रिलीज कर सकते हैं। बी रेडी फॉर द प्राणायाम अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन प्राणायाम जिसे कहते हैं। अनुलोम विलोम के लिए आप बैठे हैं सुखासन में। लेफ्ट हैंड को ध्यान मुद्रा में रखें और राइट हैंड के अंगूठे से राइट नॉस्ट्रिल को बंद कर देखो, हाथ ढीला रखना, हाथ को टाइट नहीं रखना, हाथ को रिलैक्स रखें इस तरह से, या ऐसी मुद्रा भी ले सकते हैं। एनी मुद्रा, प्राण मुद्रा भी कर सकते हैं, या सिंपल अंगूठे से दाहिने नसुने को बंद किया, बायां खुला है, लेफ्ट इज ओपन। ब्रीथ इन फ्रॉम द लेफ्ट, close the left with the ring finger and the small finger, open the right, breathe out slowly and longer. Right nostril itself, breathe in, close the right nostril with the thumb, open the left nostril, breathe out. That completes one round. सेकेंड राउंड के लिए तैयार। बाएं से सांस को भरे, लंबी गहरी सांस ले, रिंग फिंगर से बंद करना है, बाएं को अंगूठे को खोले और दाहिने से प्रश्वास करें। दाहिने से प्रश्वास लंबा होगा। अब वहीं से सांस को भरे, उस नथुने को बंद करें अंगूठे से, बाएं को खोले, बाएं से प्रश्वास कीजिए। डू नॉट बी इन अ हरी, स्लोली करना है। कंप्लीट एक्सहेलेशन के बाद तीसरा राउंड करेंगे। ब्रीद इन, लेफ्ट नॉस्ट्रिल, क्लोज द लेफ्ट, ओपन द राइट, ब्रीद आउट कंप्लीट। ब्रीद इन विद द राइट itself, close the right, open the left, breathe out. Last round, left nostril, breathe in, close left, open right, breathe out. Right, breathe in, close right, open left, breathe out. हाथ को ध्यान मुद्रा में रखें, आंखों को बंद ही रहने। अनुलोम विलोम प्राणायाम में सांसों की आवाज बिल्कुल नहीं आएगी, ना ही आपकी शरीर की कोई हलचल होगी। सो दैट वाज अ वेरी इफेक्टिव प्रैक्टिस ऑफ अनुलोम विलोम प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम, क्योंकि समस्त नाड़ियां हमारे शरीर की साफ हो जाती है इससे। नाउ वी मूव ऑन फॉर द नेक्स्ट प्रैक्टिस। नेक्स्ट प्रैक्टिस इज भ्रामरी प्राणायाम। इसमें आपको भ्रामरी में साउंड प्रोड्यूस करना है। सो आपको सांस को भर लेना है और सांस को छोड़ते हुए नाक से हमिंग साउंड, कैसे, भौरे की गुंजन। तो हाथ को इस तरह से पद्म मुद्रा में रखें, लेफ्ट palm down, on top of it the right palm. Back, see the elbows are closer and chin parallel to the floor. Breathe in first full, breathing out. आंखों को बंद ही रहने दीजिए, वाइब्रेशंस को महसूस करें। अब हम इसी प्रैक्टिस को अलग तरीके से यानी षण्मुखी मुद्रा में भी करेंगे। ओके, षण्मुखी मुद्रा में क्या करेंगे, कानों को अंगूठे से बंद किया, फिर आपकी जो इंडेक्स फिंगर है वो आपने बंद आंखों पे रखने हैं, फिर मिडिल फिंगर है नथुने के ऊपर और रिंग फिंगर है ऊपर वाले ओठ के ऊपर और स्मॉल फिंगर जो है वो नीचे वाले ओठ के नीचे। ये षण्मुखी मुद्रा होगी। इस मुद्रा में आपको सांस भर के सांस को छोड़ते हुए हमिंग साउंड करना है। तो ये बहुत इफेक्टिव हो जाता है क्योंकि ये एक प्रकार का ध्यान भी हो जाता है। यू आर कटिंग डाउन योर सेंसेस फ्रॉम द आउटर वर्ल्ड एंड गोइंग टूवर्ड्स ध्यान। इट्स अ वेरी वेरी इफेक्टिव प्रैक्टिस। सो षण्मुखी मुद्रा में इस तरह से हाथों को रखा। अभी कानों के फ्लैप्स को सिर्फ बंद करना अंगूठे से, अंगूठों को कान के होल में डालना नहीं है। सो कानों के फ्लैप्स जो है उसे क्लोज ढकना है। फिर
The index finger is placed on the top of the closed eyes, the middle finger at the side of the nostrils, the ring finger on the above the upper lip, and the small finger below the lower lip. Breathe in. आंखों को बंद ही रहने दो, दोनों हाथों को ध्यान मुद्रा में रखें, घुटनों पर पीठ सीधी। अब हमें शांभवी मुद्रा करनी है। शांभवी मुद्रा में एक्चुअली दोनों बाहों के बीच में आईब्रोज को इस तरह से देखना है, आईब्रोज को ऊपर की ओर घुमाना है, पर यह बहुत मुश्किल हो जाएगा कुछ लोगों के लिए। यू मे फील अनईजी, इसीलिए आप आंतरिक दृष्टि करें, आंखों को बंद करके अंदर ही अंदर दोनों बाहों के बीच में देखने की कोशिश करें। Because this may be difficult, so close your eyes and try to focus between your eyebrows. भ्रूमध्य दृष्टि, आज्ञा चक्र पर ध्यान दें। आप ध्यान रखें कि पीठ सीधी है और हम ध्यान के लिए बैठे हैं। कुछ पलों के लिए ध्यानस्थ रहें, कोई विचार को नहीं लाना है, सिर्फ और सिर्फ दोनों बाहों के बीच में ध्यान दिया है। सांसें सहज चल रही है। Breathe in and breathe out. Feel the breath. आने वाली सांस ठंडी है, जाने वाली सांस गर्म है। आती हुई सांस हमें ऊर्जा प्रदान कर रही है और जाती हुई सांस के साथ गहराई में आराम महसूस हो रहा है। Enjoy this relaxation, energization. Feel. मन शांत है, आपका अवचेतन मन बहुत एक्टिव है। Now the subconscious mind is very active and let us now make a resolve. एक संकल्प करेंगे। जब हमारा मन पूरी तरह से शांत हो जाता है तो अब हमारा संकल्प का समय हो जाता है। संकल्प मेरे बाद रिपीट करेंगे आप। Say it loudly because I am also saying it loudly. Only 2 sentences. So repeat after me. हमें हमारे मन को हमेशा संतुलित रखना है। इसी में हमारा आत्मविकास समाया हुआ है। वेरी गुड। अब हाथों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ दीजिए। हम कंक्लूड करेंगे, कंक्लूडिंग प्रेयर सब साथ में करते हैं। सर्वे भवन्तु। शांति पाठ। पीठ सीधी रखें, आंखें बंद है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धीरे से हाथों को ध्यान मुद्रा में रखें, आंखों को बंद ही रखें। Enjoy the vibrations. Now gently rub your palms. Make them warm. Massage your face. Again rub the palms. Gently move on your entire body.
एक बार और हाथों को रब करें, अपने चेहरे पर रखिए, हाथों को देखते देखते आंखों को खोलें. So friends, we end our session over here. Thank you all of you. Have a lovely day. Have a blissful day. Bye bye.